بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے۔ ناظرین، جموں کشمیر اور دنیا بھر پہ ابھی تک کی اہم خبروں پہ رہے گی ہماری نظر، لیکن شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر سے ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ناظرین، جموں کشمیر میں جب آپ ڈیلیمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وفود کا، ڈیلیگیشنز کا، ملاقاتوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کل سری نگر شہر میں اور اب جنوبی کشمیر اور متعدد علاقوں میں عوامی نمائندوں سے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کے ممبران کی ملاقاتوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ جنوبی کشمیر میں میری اطلاعات کے مطابق آج نیشنل کانفرنس کے لیڈران نے ملاقات بھی کی، احتجاج بھی کیا، یعنی دو طرح کی خبریں ہمارے پاس آئی۔ احتجاج اس خبر کو لے کر تھا کہ نیشنل کانفرنس ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کے ممبران کو جموں کشمیر کی زمینی صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ذرائع کے حوالے سے خبر ہے چند لیڈران کی ملاقات شیڈول میں رکھی گئی، اور جن لیڈران کی ملاقات اس شیڈول سے باہر رکھی گئی تھی وہ سیخپا تھے، ناراض تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہیں ہماری دل کی بات دل ہی میں نہ رہے۔ اس سے پہلے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کے اس اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کہا جموں کشمیر کی غیر آئینی اور غیر قانونی صورتحال کو کسی بھی قیمت پر جواز نہیں بخشا جائے گا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر محبوبہ مفتی نے اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہاجرہ کے دستخط کردہ تحریری نوٹس میں بتایا کہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ اس سے قبل یشونت سنہا سے محبوبہ مفتی کی ملاقات ہوئی۔ سابق مرکزی وزیر سے اور سابق مرکزی وزیر کا یہ معاملہ تھا کہ اگر معاملہ سب جوڈس ہے 370 کا تو اس میں ڈیلیمیٹیشن کے لیے آپ سکوپ کہاں سے کھڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی قانونی دلائل پیش کیے۔ اسی بیچ میں شہر سری نگر کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر اور متعدد علاقوں میں کئی عوامی وفود جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں نیشنل کانفرنس سرفہرست ہے۔ پیپلز کانفرنس کے وفد نے بھی ملاقات کی، کانگریس پارٹی کے وفد نے اپنے پارٹی صدر کے ہمراہ ملاقات کی، اور اسی طرح سے اپنی پارٹی کے لیڈران نے بھی ملاقات کی اور ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کے ممبران کو زمینی صورتحال سے واقف کرایا، آگاہ کرایا۔ ناظرین، اننت ناگ میں آج کی اس ملاقات کے بعد نیشنل کانفرنس کے لیڈران کا کہنا تھا کہ جن لیڈران کا نام شیڈول میں رکھا گیا تھا، ہم نے نام زیادہ دیے تھے لیکن بلاوا کم لوگوں کا آیا۔ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ پہلے اننت ناگ میں اس تقریب کے بعد نیشنل کانفرنس کے ملاقات سے قبل لیڈران نے کیا کچھ کہا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اپنے ساتھی ہلال ہانجوری سے جڑتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کا روڈ میپ جو ہے وہ کس اور ہے۔ پہلے اننت ناگ سے نیشنل کانفرنس کے لیڈران کی ملاقات کے بعد یا ملاقات سے قبل جو انہوں نے بات رکھی ہمارے ساتھی فدا حسین سے، پہلے وہ چلاتے ہیں، اس کے بعد ہلال کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم نے وہ گزارش کی کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے میں یہ کمیشن کا کام ہو تاکہ صاف ستھرے طریقے پہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو، اور دوسرا آرڈر میں ہی یہ ہوا کہ 2011 کی سینسس کے مطابق یہاں پہ سیٹوں کا بٹوارا ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم نے یہ گزارش رکھی۔ تیسرا یہ کہ جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی مائیگرنٹ ہیں وہ سینسس کے مطابق 2011 میں جموں، دلی، ادھمپور میں ان کا نام آیا ہے۔ چونکہ وہ ووٹ یہاں پر ڈالتے ہیں، اس لیے ہماری یہ کمیشن سے گزارش رہی کہ اس کشمیری پنڈت ووٹ کو یہیں شمار کیا جائے اور وہی یہیں پر وہ ووٹ رکھیں۔ یہ مین باتیں تھیں، اور ہم نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سیٹس کا اضافہ کیا جائے۔ اندر بھی کہا، ان کے سامنے بھی کہا، ہم نے کہا پہلے آپ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ، ڈیلیمیٹیشن اینڈ دین الیکشن، تو وہ ہم نے کر دیا، تو لہذا ریسٹوریشن تو یہ ہم نے بتا دیا۔ ہم نے جو امپورٹنٹ وہاں پہ یہ رکھا کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو 2011 کا سینسس، جبکہ 2021 میں سینسس ہونا تھا جو نہیں ہوا، ہم نے کہا کہ جو ریسنٹ سینسس ہوا ہے وہ 2011 میں ہوا ہے، تو 2011 کے سینسس کے مطابق اور ایز پر دا پاپولیشن اب جموں اینڈ کشمیر کے حساب سے ڈیلیمیٹیشن کو اس کو کنسیڈر کرنے کی اہم ضرورت ہے، اور وی آر ویری مچ سیٹسفائیڈ۔ کمیشن نے ہمیں اندر یقین دلایا کہ جو 2011 کا سینسس ہے انڈر دا پیرامیٹر جو ود ان دا لا ہمیں الاؤ کرے گا، ہم قانون کے دائرے کے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان ہم اسی دائرے کے اندر کام کریں گے۔ انشاءاللہ گڈ ریزلٹس ول بی آفٹر میٹنگ دا ڈیلیمیٹیشن، اور دے ول بی ورکنگ آنیسٹلی آن اٹ۔ ہم نے جو
पहले जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कई इलाकों के साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई है। जैसे आप संगम वाले को पूछ लीजिए, उसको होमशालीबो कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रखा गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ती है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि ये जो नाइंसाफियां हुई है पहले, वो नाइंसाफियां दूर करने की जरूरत है। और साथ में कांग्रेस पार्टी ने ये साथ में रखा है कि पहले स्टेटहुड, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद इलेक्शन। ये थे वो अवामी नुमाइंदे जिनका ताल्लुक़ अपनी पार्टी से। रफ़ी मीर साहब अपनी बात रख रहे थे और उसके बाद गुलजार साहब बात रखे थे कांग्रेस पार्टी की, अनायत साहब बात रख रहे थे कांग्रेस पार्टी की, और इसी तरह से दीगर पार्टियों के नुमाइंदों की माने वो इस रेट को थोड़ा सा अलग बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो सिस्टम है, जो ऑल पार्टी मीटिंग में रखी गई है बातें, उस पर अमल पैरा होना बहुत लाजमी था। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन से पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की भी बात कुछ पार्टियां कर रही हैं। हिलाल मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मौजूदगी में, उसके बाद वापस आते आते अपने प्रोग्राम में तब्दीली लाई, और पीडीपी बराबर कहती रही कि डिलिमिटेशन एक सेट प्रोग्राम है जिसको हतमी शक्ल देने के लिए अवामी नुमाइंदों के पास जाने का ये एक मामला है, लेकिन इसमें अवामी नुमाइंदों की चलेगी नहीं। हालांकि दीगर पार्टियां स्टेटहुड की भी बात करते हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल तजम्मुल, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का ये वाज़ह स्टैंड रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब कुछ सेट है और अब जो एक रस्म निभाई जा रही है पीडीपी के बकौल कि अब ऐसी मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो स्टेट लेवल पर 4 रोज़ का इनका दौरा होगा, तो उनमें पीडीपी के वाज़ह खदशात है। और उनका मानना है कि पूरे मुल्क के अंदर साल 2026 तक डिलिमिटेशन को फ्रीज़ है। तो वजूहात क्या है कि जम्मू कश्मीर को अलग थलग करके यहाँ पर पहले ही करा गया है, शक व शुबहात यहीं पर जन्म लेते हैं। ये स्टैंड सिर्फ पीडीपी का नहीं है। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगान के साथ भी बात करते हैं तो वो भी इन्हीं खदशात का इजहार करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर हमारे साथ खुसूसी बातचीत में इस बात का इजहार किया है कि ये ही बुनियाद है उन शक व शुबहात की जो जम्मू कश्मीर के अवाम इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि आखिर क्यों कर यहाँ पर पहले ही डिलिमिटेशन या हदबंदी कराई गई है। क्योंकि उनका मानना है कि 2 हिस्से हैं इस डिलिमिटेशन के भी। एक ये कि जो इलाकाई स्तर पर अगर सूबा कश्मीर के अंदर 46 से 47 सीटें हैं, तो अगर हो सकता है कि कहीं पर अमीरा कदल के साथ जो बटमालू की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर इसके दोनों इलाकों में थोड़ा सा कोई फ़र्क होगा टोपोग्राफी के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, तो वहाँ पर अमीरा कदल का इलाका बटमालू या बटमालू का इलाका अमीरा कदल के साथ जो है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा पहलू इसका है, जो स्टेट लेवल पर इसका दूसरा पहलू ये है कि जो 7 सीटें बढ़ानी है वो कहाँ बढ़ेंगी। कहीं उस पर कोई रीजनल इन्फ्लुएंस तो नहीं रहेगा, कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं रहेगा जो हिज़्ब इक़्तिदार की जमात है। ये खदशात वाज़ेह तौर पर हैं और इस सब के बीच जो सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन की अब देखी जा सकती है। क्योंकि अब लोगों का रुझान क्या होगा, इन्हीं पॉलिटिकल नुमाइंदों का रुझान क्या होगा उस डिलिमिटेशन के फैसले के बाद जब वो आएगा, वो उसी वक्त देखा जा सकता है। और उसके बाद अगर डिलिमिटेशन कमीशन फ्री एंड फेयर चला और उसके बाद इनके जो नुमाइंदगान हैं जिनने रिप्रेजेंटेशन दी है, जिनने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर अपने मेमोरेंडम सबमिट किए हैं, अपने खदशात का भी इजहार किया है, कुछ तजावीज़ भी दिए हैं, अगर उसके ऐन मुताबिक होता है तो वही पार्टियां कल बोलेंगी कि हाँ जनाब ये ठीक हुआ है। लेकिन अगर उनके मुताबिक नहीं हुआ तो फिर उस पर इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। पार्टी के मौक़िफ़ की बात करते हैं। हमने अभी सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं, रफ़ी मीर साहब वगैरह जो बता रहे थे, और तकरीबन कहीं ना कहीं यकसानियत है और बहुत जगहों पर बात आपस में मिल रही है, जिसमें वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन से पहले कुछ पार्टियां स्टेटहुड का मुतालबा रखती हैं। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने न मिलने के बाद यशवंत सिन्हा महबूबा मुफ्ती के घर गए और महबूबा मुफ्ती से मुलाकात होने से कबल प्रेसर में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 का मामला अदालत में इस वक्त है तो डिलिमिटेशन कैसे की जा सकती है। तो पूरी टेरिटरी के हवाले से आप जगराफियाई तनासब को देखने के बाद कुछ सियासी नवियत के मामला उठा रहे हैं, तो आप पीडीपी के स्टैंड को कहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने अब बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वो इस मीटिंग से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हें तहरीरी तौर पर 35 से 370 की याद दहानी कराई।
बिल्कुल, यशवंत सिन्हा ने जो इस हवाले से मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की है और उन्होंने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मूड में नज़र नहीं आ रही है कि वो पहले स्टेट और उसके बाद इलेक्शन कराए, बल्कि उनका भी ये मानना है, MM अंसारी साहब का भी ये मानना है, जो इंटरलॉकेटर कश्मीर के तय रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि इस वक्त मरकजी सरकार का जो फोकस है वो डिलिमिटेशन कराना है और उसके बाद अपनी जो हमख्याल पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनाना है और 370 के फैसले को एंडोर्स कराना है। यशवंत सिन्हा का मानना है कि अगर पहले डिलिमिटेशन किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद स्टेट दी जाएगी, तो फिर वो इलेक्शन सिर्फ यूटी के लिए रहेंगे और स्टेट के लिए अलहदा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये यशवंत सिन्हा का मानना है। तो उस तरह से उनके जो खदशात है वो यही है कि डिलिमिटेशन के बाद जो इलेक्शन कराए जाएंगे और इलेक्शन के बहुत समय बाद फिर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जा सकता है। उस पर भी आखिरी सवाल होगा हिलाल आपसे कि जम्मू कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट NIA की छापामारी के बाद कुछ ठहराव आया था। कुल जमाती मीटिंग के बाद लौटते लौटते जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर की वालिदा को 14 जुलाई को ED ने अपने जोनल ऑफिस वाक़या राजबाग में तलब किया है। अवामी राय में क्या कुछ पाया जा रहा है और क्या डिलिमिटेशन मीटिंग में जाने से ये फैसले, ये मामला रुक जाते या ये रूटीन मामला था जिसको पहले डेफर किया गया था, अब दोबारा इसको तलब किया गया है? देखिए, महबूबा मुफ्ती की वालिदा को इससे पहले भी तलब किया गया था और अब भी उन्हें एक नोटिस जारी की गई है जिसका इजहार महबूबा मुफ्ती ने भी किया है, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया तो उन्होंने इसे इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ गिना है कि उन्होंने इनकार किया है डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने में और यही नतीजा है कि अब उन्हें इसकी सज़ा दी जा रही है। पब्लिक के अंदर भी जो कुछ हल्के हैं वो इसी सिमत में इसे तस्वुर कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो ED की जानब से ये उनकी तलबी हुई है तो उसे एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही देखा जाना चाहिए और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है और इस पर भी अगर कोई तब्दीली आ जाती है वो आने वाले वक्त में देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ ही हिलाल हांजूरी श्रीनगर से बराह रास्त इतलात बता रहे थे, तफसीलात दे रहे थे और कह रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो वफद है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आज कई लीडरान से मुलाकात हुआ और मुलाकात के दौरान लीडरान ने अपना फीडबैक दिया। लेकिन इसी बीच में श्रीनगर शहर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा को ED ने दोबारा 14 जुलाई को तलब किया। ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुल जमाती वफद जब 14 मेंबरान का दिल्ली पहुंचा था तो उसके बाद नईम अख्तर अंद्राबी की घर वापसी हुई डिटेंशन सेंटर से, मोहम्मद सरताज मदनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की घर वापसी हुई। बाद में उन्होंने एक मीटिंग से भी खिताब किया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों की, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एतमाद साजी के लिए इकदाम उठाए जाते हैं और मेन स्ट्रीम पार्टियां शायद उम्मीद लगाए बैठे थे कि CBMs या एतमाद साजी में लीडरान की घर वापसी के साथ साथ चुनाव, डिलिमिटेशन और बाकी मामलात के लिए माहौल को साजगार बनाना होगा, क्योंकि 35 से 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियों को छूट मिली, कुछ पार्टियों को डिस्काउंट मिला, कुछ पार्टियों को बहुत ज़्यादा सख्ती हुई। हालांकि उस वक्त बड़े मामलात भी चले भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की 2 रीजनल पार्टियों के बीच में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि उनके पास मेंबर पार्लियामेंट 3 हैं और वो डिलिमिटेशन कमीशन की इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल उन्होंने मशावरत के बाद पाया कि मिलना तय है क्योंकि इसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। और पता ये चला कि डिलिमिटेशन कमीशन में अब मुतालबात जो है वो कांग्रेस पार्टी, अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों ने रखा कि स्टेटहुड के लिए बहुत लोग जो हैं वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं, लेकिन PDP ने स्टेटहुड का कभी बात ही नहीं रखी, उन्होंने इसका मुतालबा नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बयान आया था इनफरादी सतह पर देवेंद्र सिंह राणा का, जो कि सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस के हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटहुड का मुतालबा आया था। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई तो उसमें अभी तक उन्होंने स्टेटहुड का मुतालबा नहीं किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल बेहतर माहौल देखना चाहते हैं और तमाम पार्टियों को एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कुछ दिन पहले बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ तरीके से इंतखाबात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बयान जारी करते हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि गुपकार गैंग वो नहीं कहते हैं, बल्कि जो लीडरान कहते हैं उनकी ज़ाती राय हो सकती है। मैं उन्हें बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता हूं और अवामी नुमाइंदों और लीडरान की नज़र से ही इनको देखता हूं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन का दौरा जारी, जनूबी कश्मीर और मुतअद्दिद इलाकों में मुलाकी होने के बाद
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न मिलने का फैसला किया। बाकी पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का सिलसिला जारी है। देखने वाली बात होगी इन मुलाकातों के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन से जो खदशात हैं, जो अप्रहेंशंस हैं, जो लीडरान को लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी और विधानसभा या असेंबली के चुनावों के लिए जो नशिस्तें बढ़ेंगी उसमें किन चीज़ों का पासो लिहाज रखा गया है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अगली खबर शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके से आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की और हंदवाड़ा के इस इनकाउंटर के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि बीती रात में जम्मू कश्मीर पुलिस और SSB का खुसूसी नाका लगा था, जो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पासो लिहाज जो गाइडलाइंस हैं उनको देखने के लिए किसी मखसूस जगह पर नाका लगा था। और जम्मू कश्मीर पुलिस दावा करती है कि इस मौके पर महराजुद्दीन अहमद उर्फ उबैद, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, मशकूक हालत में उन्हें पाया गया, जिसके बाद इंट्रोगेशन सेंटर और उसके बाद उन्होंने कबूल किया कि वही उबैद है जो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काफ़ी टाइम से सरगर्म था। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही दावा किया कि आसपास के इलाके में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मैन चौक रालगुंड के आसपास में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंट को साथ लेकर उस जगह पर पहुंची और दावा किया कि वहां से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया। और बाद में ये बताया कि मज़कूरा शख्स जो ही वहां पे पहुंचा तो उसके बाद इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में ये मिलिटेंट जो है मारा जा चुका। इससे कबल आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के टयोटा अंसारी के पास में लश्कर तैयबा का इंतहाई मतलूब नदीम अबरार इसी तरह से गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद पुलिस ने उस वक्त कहा था कि HMT के नज़दीक मेलूरा के नज़दीक इनकाउंटर हुआ और हथियार की निशानदेही के दौरान भी LET का कमांडर वहां पर मारा गया। जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़यात बहुत कम बार हुए जब कम वक्त में मिलिटेंट कमांडर या मिलिटेंट की गिरफ्तारी हुई हो और कम वक्त में उनकी निशानदेही पर इनकाउंटर हुआ हो और बहुत कम वक्त में इस तरह से इनकाउंटर जो है गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारा जा चुका हो। इस बीच में हंदवाड़ा और आसपास के इलाके में अलग सुबह जब हमारी टीम इस एरिया पे पहुंची तो इनकाउंटर ख़त्म हो चुका था और रात को शुरू हुआ था, रात को ही ख़त्म हुआ था और दोबारा हंदवाड़ा और आसपास के इलाके में नाके वगैरह जो है मजीद सख्त कर दिए गए। इसी बीच में IGP कश्मीर का बड़ा बयान, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन का बड़ा बयान, 13 जुलाई को हिजब कमांडर बुरहान वानी की बरसी के मौके पर इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा। IGP कश्मीर विजय कुमार के बयान के मुताबिक 13 जुलाई को और उसके बाद 11 जुलाई को, चूंकि हिजब कमांडर बुरहान वानी की बरसी के मौके पर अमूमन एजेंसीज जो थे वो इंटरनेट को स्नैप करते थे, कहते थे कि वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिससे सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जज्बात को उभारने की कोशिश की जाती है। अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिया बड़ा फैसला, 11 जुलाई और 13 जुलाई को इंटरनेट बंद नहीं होगा। ताहम बताया गया IGP की तरफ से कि जो फेक वीडियोस या फेक स्ट्राइक कॉल्स दी जाएंगी और जो जिस वक्त वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उस पर लगातार नजर रहेगी और जो भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, 11 और 13 जुलाई को कोई भी इंटरनेट जो है वो बंद नहीं होगा, इंटरनेट डाटा सर्विस कंटिन्यू रहेगी। माजी में हमारा तजुर्बा है कि 11 जुलाई और 13 जुलाई को अमूमन इंटरनेट सर्विस को या तो उसकी स्पीड को कम किया जाता था 3G से 2G तक। अब चूंकि काफ़ी टाइम के बाद 4G की वापसी हुई है, जम्मू वापसी हुई है, लेकिन पुलिस का बड़ा बयान कि 11 जुलाई और 13 जुलाई को इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इंटरनेट पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट की नज़र लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान के साथ। नाज़रीन, बॉलीवुड की इंतहाई अहम शख्सियत और मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार 98 वर्ष के उम्र में इंतकाल कर गए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म रहा। कभी गंगाराम, कभी मिधानता और कभी प्राइवेट अस्पतालों के बाहर खबरें गर्दिश करने लगी, लेकिन उसके बाद उनकी अहलिया सायरा बानू ने लगातार खबरों की तरदीद की और काफ़ी ज़ईफ़, काफ़ी कमज़ोर होने के बाद अस्पताल से लगातार रुखसत होते रहे। बिलाखिर अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के मीडिया इंचार्ज अरुण यादव ने बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ने हिंदू नाम रखकर बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उन्होंने माइनॉरिटी की तरफ से इशारा किया था।
अरुण कुमार जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मीडिया इंचार्ज हैं हरियाणा के, उन्होंने ये बयान जारी किया। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ने फौरी तौर पर जवाब दिया और उर्मिला मातोंडकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने से भारतीय जनता पार्टी की नेक नीति पर भी शक नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके अज़ाइम सामने आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या, दुनिया भर में क्या, जो भी मामला इस वक्त चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहे। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि यह किस तरह का बयान है कि आप मोहम्मद यूसुफ खान की सलाहियतों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि दीगर मामलात पर बातचीत करते हैं। नाज़रीन, इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला साबिक वजीर आला और मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिलीप कुमार को जबरदस्त अल्फाज में याद किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मुल्क का दीगर ममालिक के साथ रिश्ता दिलीप कुमार ने बहसीत एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़ा ही बेहतरीन रोल अदा किया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि दिलीप कुमार की अब जो कहीं ना कहीं मौत वाक़या हुई है, इससे हमारे दिल काफ़ी रंजिश हमारे दिलों में पैदा हुई है। सायरा बानो और अहल खाना के साथ डॉक्टर अब्दुल्ला ने ज़ाती ताज़ियत का इजहार करते हुए हमारे नुमाइंदे को बताया। आज सुबह बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि यूसुफ जनाब दिलीप कुमार साहब इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। वो बहुत ही नेक आदमी थे और उनका मुकाबला नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंसानियत में भी। उन्हें कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत थी, बल्कि कई बार यहाँ आए और हर बार यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि कुछ करना यहाँ, मगर मौका नहीं मिला। मैं उन्हें, उनकी बेगम और सारे खानदान के साथ इस गम में शामिल हूँ। मारूफ फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार को खराज अकीदत पेश कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कह रहे थे कि मुल्क जो है एक इंतहाई मिलनसार शख्सियत से दूर हो गया और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उन्हें सुना कि 98 बरस की उम्र में दिलीप कुमार अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इंतहाई अहम इंडस्ट्री की। नाज़रीन, इंग्लिश विलो से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। दरअसल कश्मीर में बैट इंडस्ट्री की वजह से न सिर्फ काउंटी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा क्रिकेट ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है वो अमूमन उसका मटेरियल कश्मीर से ही रवाना किया जाता था। गुज़श्ता से पेवस्ता 35 से 370 की मनसूखी के बाद संगम, बिजबेहड़ा, अनंतनाग, जनूबी कश्मीर के मतअद्दिद इलाकों में अब क्रिकेट का ये इंडस्ट्री जो है, बैट इंडस्ट्री जो है, ये तकरीबन ज़वाल पजीर होता जा रहा है। हालांकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब ये सफ़ेदे वगैरह दरख्त जो है इनको काटने के बाद बैट वगैरह जो तैयार तो किए जाते हैं, लेकिन इसका ख़रीदने वाला नहीं है, ना ही इसका ट्रेडर, ना ही ट्रैवलर, और ना ही अब उतनी ज़्यादा गहमा गहमी है। आपको याद होगा साल रवां के दौरान PSL, IPL और आलमी कप को भी इंडिया से बाहर अबू धाबी या शारजा में वेन्यू शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में संगम के आसपास में इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बड़ी तादाद में इस वक्त बड़ी पुकार लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बैट को ख़रीदने के लिए यहाँ पर हमारे पास ख़रीदारी नहीं है। करोड़ों रुपया का नुकसान होने के साथ साथ इस सनत से वाबस्ता बड़े लोग जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं। मेरे साथी इरफान फाजिल ने आज खुद जायज़ा लिया और बैट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से बातचीत की और ख़ुद जाकर सूरत हाल को जानना चाहा कि बैट इंडस्ट्री को हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। इरफान फाजिल की खास रिपोर्ट। हमारी जो ये बैट इंडस्ट्री है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में जो बैट्स बनते हैं या तो इंग्लैंड में बनते हैं या तो कश्मीर में बनते हैं। 2 टाइप्स ऑफ विलोज आर देयर, एक तो कश्मीर विलो है, एक इंग्लैंड विलो है। तो ये जो हमारा रिसोर्स है, एक यूनिक हमारा रिसोर्स मिला था बाय नेचर हमें हम ये जो संगम माना जाता है, ये इंडस्ट्री का हब माना जाता है। सारे बैट जो सप्लाई होते हैं थ्रू आउट द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, ये सारे यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, यहीं पे प्रोसेस होते हैं। बट ड्यू टू लॉकडाउन और एल्स आफ्टर द आर्टिकल
बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी, जैसे कि पैंडेमिक में क्या हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल्स थे कि अंदर ही रहना है, फैक्ट्रीज जो है बंद रहेंगी, या कस्टमर जो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा था, रेस्ट्रिक्शंस वर देयर, तो हम भी यहाँ से काम जो है सारा हॉल्ट पड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है हमारी वो सारी रुक गई, कस्टमर्स यहाँ पे नहीं आ पाते थे क्योंकि लोकल ट्रैफिक जो वो बंद था, घरों में मतलब रहना था सब लोगों को। इस वजह से जो सेल है हमारी या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी हॉल्ट हो गई, वो सारी बंद हो गई। जनक, ये भी चाहूंगा कि तकरीबन पिछले 3 साल को लेकर देखा जाए, कितने ऐसे यूनिट्स होंगे जो इस वक्त टोटली माल बना के सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक साइड से अभी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है वो भी बंद पड़ी हुई है? देर आर ऑलमोस्ट 260 यूनिट्स इन दिस वेरी एरिया जो कि यहाँ पे जो बैट का मतलब काम स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम हर किसी फैक्ट्री में अगर आप जाओगे, मतलब हर किसी फैक्ट्री में विजिट करोगे तो जो है स्टॉक है वो वहाँ पे बना पड़ा है, तो वहीं पे हॉल्ट पड़ा है। क्योंकि क्या हुआ कि जो आउटसाइड यहाँ का जो 95% मैं बोलना चाहूँगा जो बल्ले बनते हैं वो बाहर जाते हैं, तो 5% जो है यहाँ पे लोकल प्लेयर्स को सप्लाई जाता है, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है सीजन बैट्स के लिए। तो जो प्रोडक्शन हमारी थी वो सारी बंद रही, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट हमारा बंद रहा, दुकानें बंद रही, वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे भी बंद रहा। तो जो प्रोडक्शन थी, मटेरियल था, वो सारा फैक्ट्रीज में बंद पड़ा, क्योंकि सेल नहीं हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। वादी कश्मीर में बैट इंडस्ट्री और बैट इंडस्ट्री को लेकर अगर बात करें तो साउथ कश्मीर में कई सारी ऐसे जी हाँ फैक्ट्रीज है जो पिछले 3 साल से काफी ज्यादा खस्त हालत में हैं। अगर बात करें कश्मीर विलो को लेकर तो ये विलो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, मगर बात अगर करें 370 आर्टिकल एब्रोगेशन हो या साथ ही साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक, यहाँ के उन लोगों का मानना है जो खास तौर पे ये फैक्ट्री रन करते हैं, उनका मानना है कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त इंडस्ट्री खस्त हालत में पहुंच चुकी है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, और साथ ही साथ इस सिचुएशन पर जिंदगी गुजर बसर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, संगम कश्मीर। नाज़रीन, बैट इंडस्ट्री के बाद अब रुख करते हैं एक और अहम मौजू का। जम्मू कश्मीर में जब आप बीते दिनों में 4 साल के बाद जो स्टोन कैरीज थी उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। कहा जाता है कि पांता चौक और उसके आसपास में जो भी इस इंडस्ट्री के साथ लोग वाबस्ता हैं, खतरात बहुत ज़्यादा है, जंगलात इस एरिया में बहुत कम है, जिसके बाद कल एक गैर मामूली फैसला लेते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि अब यह कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हैं। आज इसी एसोसिएशन के सदर ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि जब आपने इस पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया तो आपने कहा कि सरकारी कामों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर इस मटेरियल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होगी कि जब आप सिर्फ इस बैन को हटाने के लिए महदूद रखेंगे कि आप सरकारी ठेके जो है उसको आप सप्लाई वगैरह दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो इससे ज़्यादा काम हमारा होता है। उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि मुकम्मल पाबंदी जो हटा दी जाएगी ताकि बेरोजगारी का जो कलाकमा सरकार ने मनसूबा तरतीब दिया है, आगाज पांथा चौक जेवन से किया जाए। इसके लिए हमें डिस्पोजल परमिट दिया गया है, न कि किसी सिविल के लिए है। सिविल जो मैं गुजारिश करता हूँ अपने डायरेक्टर साहब से भी, जॉइंट डायरेक्टर साहब जी, हमारे जो द्विवेदी साहब से भी, और ख़ास तौर पर जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, उससे भी मैं गुजारिश करना चाहूँ जो प्राइवेट जो है, प्राइवेट के लिए ख़ास तौर पर उसमें ज़्यादा गरीब गुरबात है, वो पाइलिंग नहीं कर सकते, मकान नहीं बच सकते ऐसे, क्योंकि वो जो ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कंक्रीट बनाए। लिहाजा कर मेरी ये गुजारिश होगी कि आइंदा जो खास तौर पर इन गरीब गुरबातों का ख्याल रखा जाए, इनके लिए भी 10 से 20% इसमें अगर शेयर किया जाए तो हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट। और नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि PAGD ने अपनी प्रेस रिलीज अभी भी जारी की, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की वालदा को ED की तरफ से तलबी की ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिएगा इजाज़त। देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पे रहेगा जारी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।